नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम भारतीय जनता पार्टी की देश में राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए भाषण के बाद जो बौखलाहट है उस पर बात करेंगे और आपको देख करके बहुत मज़ा आएगा। वीडियो काफ़ी लंबा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं इस समय राहुल गांधी को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के 18 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे और इस समय मोदी के शागिर्द बन के वहाँ कृषि मंत्री बने हुए हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी देशद्रोही हैं, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कितनी उबड़ खाबड़ बातें करते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। इन सब बातों का राहुल गांधी ने बाकायदे आज ही अमेरिका में ही बैठकर वहाँ के प्रेस क्लब में इस बात का खंडन किया है कि मेरा जो भाषण है उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है भारतीय मीडिया में। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता सारे मेरे पीछे लगे हुए हैं कि मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मैं ये वीडियो अब आपको राहुल गांधी ने जो अमेरिका वाशिंगटन डीसी में जो बात कही है, अंग्रेजी में है, उनको समझने की कोशिश करिए। पूरा भाषण है जिसमें जो आधी अधूरी कटिंग करके जो वीडियो यहाँ का जो गोदी मीडिया है, आईटी सेल, जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसके कहने पर ये सारी चीज़ें छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है और ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर के देश की जनता का अपमान करते हैं, देश की सरकार का अपमान करते हैं। अब मैं आपको पहले तो राहुल गांधी की बात सुनाता हूँ, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा बाहर जा कर के, वो भी मैं वीडियो आपको बाद में सुनवाऊँगा। पहले आप सुनिए राहुल गांधी के लगातार जो उन्होंने इस पूरा जो इंडिया में चल रहा है इसका खंडन करते हुए क्या क्या कहा है। उन्होंने पहले क्या कहा था, आरक्षण पर भी उन्होंने कहा है, चाइना पर भी उन्होंने कहा है। देखिए सारे वीडियो। Generally think women are better in positions in leadership than men. That's my position. I think they tend to be more sensitive, tend to have a longer term perspective. And so the more women in politics, the more women in business, the better it is. We've been pushing that along quite aggressively in the Congress party and also in our political system. We did the entire Panchayati Raj Act, gave reservations to women. And then we're pushing the idea of reservations for women in Vidhan Sabhas and Lok Sabha. So I'm a believer. Yes, I mean, I don't see a big diversion. You know, I don't see Mr. Modi diverting very much from our approach with the US, and I don't see ourselves changing direction very much from what he's doing. So I see continuity there. I think everybody on both sides of the equation, everybody does accept the fact that the India-US relationship is key for both countries. Okay. One more. Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. There are two elements. The first is the defense cooperation, which is important, and I think we do a good job there. But then the second is what I touched on just now, which is China has placed in front of us a vision for production and prosperity in a non-democratic environment. Right? What is our response? Are we simply going to just sit there and say, okay, China can be the producer of the world and we're not going to do anything? Or do we have a response? What is our response to the Belt and Road? Right? I don't see one. So to me, that's really where US and India cooperation needs to go. How can we provide a democratic vision of production, of manufacturing that actually works to the rest of the world? And I think both countries bring different things to the table, and I think there's a huge opportunity there. Okay. No, I wouldn't call it. I wouldn't call it a transformation. A journey? Yeah, a journey.
I think politics in India changed very dramatically in 2014. We entered a phase of politics that we haven't seen in India before. Aggressive, attacking the foundations of our democratic structure. And so it's a tough fight. It's been a good fight. And personally, of course, it has changed me. I wouldn't have ever imagined before 2014, if you had come to me and said, look, you walk across from Kanyakumari to Kashmir, I would have just laughed at you. And I would have said, that's ridiculous. Mm-hmm. But that was the only way left for the opposition in our country. Media was suppressed, institutions were controlled, agencies were attacking the opposition, governments were being overthrown, and we found that literally the only way was to go directly to the people of India. Okay. And that certainly changed me in fundamental ways. Right. आपने राहुल गांधी के ये सारे वीडियो देख लिए, उसमें कौन सी जगह राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा या आरक्षण का विरोध कर रहा हूं? राहुल गांधी ने बाकायदे कहा है कि देश में सामाजिक तानावाना पूरी तरह से बिखरा पड़ा है, ऊंच नीच का भेद बहुत भारी है, और ये सारी चीज़ें जब तक भारत में दुरुस्त नहीं हो जाती तब आरक्षण खत्म करने की बात की जा सकती है। ये बात राहुल गांधी ने कही है, ना कि उन्होंने ये कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन उनकी इस बयानबाजी को लेकर के मायावती ने भी आधा अधूरा भाषण सुनते ही कल एक्स पर अपना बयान जारी कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ। और अभी कुछ पूरा आईटी सेल है, मैं अभी गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहा था, उनका भी एक बयान ऐसा ही आ रहा है, मतलब एक किसी चैनल पर उनकी टिप्पणी आ रही है कि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता आरक्षण को। अरे आरक्षण खत्म करने की बात तो आपकी पार्टी के लोग खुलेआम करते हैं, एक नहीं दर्जनों लोगों के बयान सामने हैं, पब्लिक डोमेन में है। आप इस तरह की बात कह करके खुद को अब इस समय बचाने की मुद्रा में है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव चल रहा है, कश्मीर में चुनाव चल रहा है और यूपी की 10 विधानसभा सीटें भी चुनाव के मुहाने पर हैं, अगला महाराष्ट्र में भी चुनाव है। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैंने आरक्षण का कोई विरोध नहीं किया और न मैं आरक्षण विरोधी हूँ। अब क्या कहोगे आप? लेकिन फिर भी बहुत सारी और भी चीज़ें, चाइना को लेकर के तमाम विरोधाभास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो भी है, मैंने राहुल गांधी का आपको ये सारा सुनवाया और मैंने वो टीका टिप्पणियाँ भी सुनवाई जिनमें अमित शाह ने भी बोला है और आपका जो कृषि मंत्री है चौहान, उन्होंने भी बोला है कि देशद्रोही हैं राहुल गांधी। पता नहीं कहाँ से भाई, जब आपको पता लग रहा है कि देशद्रोही हैं तो जैसे ही एयरपोर्ट पर आए उनको गिरफ्तार करा लेना। वो भी हिम्मत नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आपको मालूम है कि सारा खेल आपके उलट पड़ जाएगा और ये जो मुकदमेबाजी आप करने की कोशिश कर रहे हैं ये 2 मिनट भी नहीं रुक पाएंगे अदालत में। खैर, अब मैं आपको नरेंद्र मोदी के वो भाषण सुनवाता हूँ जिनमें उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या बोला है। कैलिफोर्निया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, चीन में, हम इस देश में कैसे पैदा हो गए, इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि देशद्रोह किस पे लगना चाहिए, लेकिन कोई भी अंधभक्त इन भाषणों को सुनने को तैयार नहीं होगा। खैर, हम सुनवा रहे हैं आपको, ये जरूरी है, क्योंकि इस तरह की जो कहानी गढ़ी जा रही है उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। तो देखिए नरेंद्र मोदी का ये भाषण। सरकार की अपनी निर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। इसके बाद गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। फिर क्या? That we dream of is yet to be built. और सबसे बड़ी बात, पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है। तो वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते।
फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। तो पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और या था। जो 85 पैसा घिस लेता था। फिर ऑस्ट्रेलिया का भी सुनिए। मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने इतना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता। फिर अमेरिका वाला। तो आपने देखा नरेंद्र मोदी को किस तरह से बात कर रहे हैं विदेशों में। अरे भाग्य ही खराब है, हम भारत में पैदा हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। खैर आपने उनका अर्थ निकाल लिया होगा। और लेकिन मैं अब ये बात बता दूं कि राहुल गांधी आरक्षण के कतई विरोधी नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें, अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगता है। और हमारी पत्रकारिता को आप यदि पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए इसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।